जनरली आहार ये कहा जाता है कि कितने बार लेना चाहिए। एक बार कहा जाता है, एक बार Yeah. खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी। जनरली आज के कंसेप्ट में लोग 3-3 बार खाते हैं, मिनिमम 3 बार तो खाते ही हैं। खाना खाने से पहले हाथ पैर धो लेने चाहिए, और खाने से पहले अगर आप अदरक का छोटा सा पीस साफ करके, थोड़ा सा उसके छोटे छोटे पीस करके उसमें सेंधा नमक लगा के खाएंगे तो आपको भूख अच्छी लगेगी, और इनडाइजेशन मैटर जो पिछला पड़ा हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। जैसे Yeah. आंखों की ज्योति को बढ़ाना है, सुबह उठते ही आप आंखों की जो आपकी सलाइवा है, लार है, ये एंटीवायरल का काम करती है, और आंख को ये लगाओ, मुंह से अपने फिंगर में, इंडेक्स फिंगर से अपनी आंखों में लगाओ। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जो चीजें 50 से 60 में लोगों की आंखें वीक होती हैं, दांत वीक होते हैं, ये आप फॉलो करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप। Hi friends, my name is Bhavya Mangla and back again on the 47th episode of Unfiltered Conversation. You know, we started this series with the objective of calling the different people who are doing extremely good in their part wherever they are working to understand their perspective and what we can learn from them. Now, these days, a lot we are talking about health, a lot we are talking about aging. There are so many things that we are reading, we are going through the videos in social media, so many things are coming out about age with respect to health, and we know, I think, everything. But I think apart from knowing everything with respect to aging and health, somehow we are not being able to link both of them and to see that what we can do to have a certain lifestyle so that we can delay our aging. No, aging is not bad, but the important thing is, are we aging gracefully or not? That's the most important part. So today, to talk more with respect to it, wherein we need to link two things. One is about health, and another is about aging. How we can do that? So for that, we have with us Dr. Ravi Gogia. Now, Dr. Ravi Gogia has done his MD in 2002 in medicine in Ayurveda. He has got more than 24 years of practical experience. He has written more than 30 articles with respect to Ayurveda and different aspects of it. He has gone through different webinars, more than 20 webinars in India and outside India. He is an eminent personality who is known with respect to the Ayurveda practices. So let's welcome Dr. Gogia. Dr. Gogia, hi. Thank you. Thanks for invitation. Thanks for inviting me as a guest speaker for this webinar. Our topic is delay aging through healthy lifestyle. Firstly, we have to Yeah. define what is aging. Aging, as for our clinical Ayurvedic Shastra, it has been defined as शीरते एति शरीरम, दैट मीन्स जिसका डेली शरण होता रहे उसे शरीर बोलते हैं। जब से छोटा बच्चा जन्म होता है, हमारी शास्त्रों में कहा गया है कि शतायु बोला गया है। आयु को शतायु मतलब 100 वर्ष की आयु बताया गया है। इसमें 100 वर्ष की आयु, दैट मीन्स पर्सन शुड बी हेल्दी, that should be Yeah. healthy through all aspects. It is not mere absence of disease. It person should be healthy through physically, mentally, socially, economically, emotionally. That each and every aspect should be clear. That should be healthy through all aspects. So healthy की definition ये होगी as per your WHO. जी. As per aging process, aging तो होना ही है, degeneration तो होना ही है, but we can't stop it, but we can delay it by our healthy lifestyle, by adopting all do's and don'ts regarding Ayurveda. So these are the do's and do's steps which should be followed by all people in order to remain healthy. Degeneration जनरली हमारी बॉडी में 40 ईयर्स के बाद दिखना शुरू होता है। 40 ईयर्स के बाद, क्योंकि हमारे 40 ईयर्स के बाद हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, जठराग्नि, वो वीक हो जाती है। इस पैटर्न में, इस एज में जो व्यक्ति इसको समझ लेता है कि मेरा डाइजेस्टिव फायर वीक हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस ले आएगा। अगर वो व्यक्ति चेंजेस लेके आएगा, दैट मीन्स वो हेल्दी लाइफ जी सकता है। कुछ हेल्दी लाइफ को क्या क्या कैसे जीतना चाहिए, इसके बारे में कहा जाता है शरीरे भोजनम अधीन। दैट मीन्स हमारा शरीर भोजन के अधीन है। जो हम खाएंगे वही हमें मिलेगा, वैसा ही हमारा शरीर बनेगा। स्पेशली हमें फूड को, वी शुड हैव फूड एज मेडिसिन की तरह फूड खाना चाहिए। कम खाना चाहिए, कम खाएं गम खाएं। दैट मीन हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, अगर हम फूड को कम नहीं खाएंगे तो क्या होगा, औषध जो हमारी जो मेडिसिन है उसको हमें फूड की तरह लेना पड़ेगा। सो वी शुड हैव फूड एज ए मेडिसिन। कम खाना चाहिए,
हमारे शास्त्रों में कहा है कि लंघनम परमोषधम, जब भूख नहीं है तभी मत खाओ। आप बॉडी को एक स्टॉप फैक्टर में लेके आओ कि भैया भूख नहीं है, रुक जाओ अभी। बॉडी जब डिमांड करेगी, बॉडी जब कहेगी भूख लग रही है, तभी बॉडी के अंदर डालो। जैसे हमारी जो भाई बहनें हैं, मदर्स हैं, वो क्या करती हैं, रसोई में तवा जब गर्म होता है तभी रोटी डालती है। ऐसे नहीं है कि तवा गर्म नहीं है रोटी डाल दी। रोटी अगर डाल देंगे, तवा गर्म नहीं है, तो क्या होगा, रोटी जल जाए, रोटी बिल्कुल कच्ची रहेगी, वो इनडाइजेशन में रहेगा हमारी बॉडी में। तो वैसे ही बॉडी में जब बॉडी डिमांड करे, जब बॉडी का तवा गर्म हो, अग्नि गर्म हो, जठराग्नि डिमांड कर रही हो, उस वक्त हमें खाना खाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आहार का लेने का तरीका। जनरली आहार ये कहा जाता है कि कितने बार लेना चाहिए। एक बार कहा जाता है, एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी। जनरली आज के कंसेप्ट में लोग 3-3 बार खाते हैं, मिनिमम 3 बार तो खाते ही हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर 2-2 घंटे बाद खाते रहो, कुछ ना कुछ खाते रहो। बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। 2 बार खाएंगे आप, हमेशा फिट रहेगी बॉडी। पहले हम जमाने में लोग 2 बार खाना खाते थे, सुबह और शाम को। सुबह और रात को नहीं, ओनली शाम को। दोपहर को हल्का सा फ्रूट खा लिया और सुबह खाया, और जब शाम को आपने जब खाएंगे, भूख बहुत तेज लगेगी, तो आप इजीली डाइजेस्ट भी इजी होगा। कहा जाता है कि खाना तभी खाना चाहिए जब ब्रह्म मुहूर्त हो। हमारा बॉडी में मुहूर्त होता है, जैसे बॉडी में अर्ली मॉर्निंग कहते हैं 4 o'clock ब्रह्म मुहूर्त होता है। खाने के रिस्पेक्ट में हमें कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त वो होता है जब हमारी बॉडी डिमांड करती है, बॉडी में सारे डाइजेस्टिव जूस पीक पोजीशन पे होते हैं, तो उस वक्त हमारे को खाना खाना चाहिए। और ऐसा खाना चाहिए, जैसे लोग क्या करते हैं आजकल, टाइम देख के खाना खाते हैं कि भैया अब 8 o'clock हो गया, अब जाना है, वाइफ भी कहेगी जल्दी खा लो, मुझे आगे जाना है, जल्दी बन रहा है, सब बच्चे खा रहे हैं, आप भी खा लो। फिर सोचते हैं भूख तो है नहीं, सब खा रहे हैं, खाना खा लो। दोपहर को 1 बजे 2 बजे भूख नहीं है तब भी खा रहे हैं, रात को भूख नहीं है तब भी खा रहे हैं। हमें ये देखना है कि बॉडी कब हमारे को मांगती है खाना। बट जनरली क्या होता है, जैसे बैंक्स में या कहीं आप कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर 1 to 2 के आसपास आपका लंच और है। अगर आपको भूख नहीं लग रही, तो उसमें लोग कहते हैं यार मैं तो 1 से 2 ही खा सकता हूँ, उसके बाद तो मैं खा नहीं सकता। तो उस वक्त अगर बॉडी नहीं मांग रही, आपको डिमांड नहीं कर रही, तो डिपेंड करता है कि पहले आपने खाना क्या खाया है। ब्रेकफास्ट हैवी किया है तो आपको दोपहर को खाना भूख देर से लगेगी, तो उस वक्त आप स्किप करो। बॉडी में हल्का सा कुछ लेके आप बैठ जाओ, 2-3 घंटे तक रह सकते हो। फिर नेक्स्ट टाइम में जब 2-3 घंटे के बाद भूख लगेगी तब खा लो। अगर आप भूख नहीं है और खा रहे हो, तो हमारे जूसेस निकलेंगे नहीं निकलेंगे, तो टॉक्सिन हमारे क्रिएट होंगे। जैसे कहा जाता है ना, लिपिड प्रोफाइल अब खराब हो गया, दैट मीन कहा जाता है एलडीएल बढ़ गया, आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया, आपका थायराइड बिगड़ गया। तो ये दीज आर द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट इज कॉज बाय डिक्रीज डाइजेस्टिव फायर। हमारा फायर है नहीं, अब खाना खाए जा रहे हो, तो मेटाबॉलिज्म और डिले और शॉर्ट हो गया, कम हो गया, तो हमारी डाइजेस्टिव जो ट्रैक में कुछ टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं। वो टॉक्सिन हमारी बॉडी को रेगुलेट नहीं करने देते, आगे चलने नहीं देते, कई प्रॉब्लम्स आती हैं। कहा जाता है कि हमारी बॉडी में डाइजेशन अगर हमारा वीक है, हमारे जूसेस कम निकल रहे हैं, ओके, आपको भूख नहीं लग रही, आप खाना खा रहे हो, और वीक हो जाएगा। और वीक होगा तो क्या होगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मंदाग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर वीक होगी, तो सारी प्रॉब्लम का जड़ ये मंदाग्नि है। मंदाग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर वीक। क्योंकि जॉइंट डिसऑर्डर, ईच एंड एवरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट स्टार्ट्स विद लो बीएमआई, लो डाइजेस्टिव फायर। तो इसलिए हमारा को इम्पोर्टेंट है कि हमें भूख लगे तभी खाना खाएं। एक तो चीज़ इम्पोर्टेंट ये है, आज की डेट में लोग, मैं देखता हूँ आजकल के बच्चे मोमोज खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, मोमोज के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। मोमोज गर्म और कोल्ड ड्रिंक ठंडा। गर्म और ठंडी चीज़ को इकट्ठे नहीं लेना चाहिए। इकट्ठा लेंगे तो गम्स आपके एट्रिफाइड हो जाएंगे, गम्स में स्वेलिंग आ जाएगी। तो गर्म और ठंडा इकट्ठा नहीं लें। और 2-3 विरुद्ध आहार हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जैसे दूध और खट्टा, दूध और नमकीन। लोग क्या कर रहे हैं, दूध के साथ बिस्किट खा रहे होते हैं, नमकीन दूध के साथ ले रहे होते हैं। कभी भी याद रखें, दूध के साथ नमक वाली चीज़ को भी कभी ना लें। लोग क्या करते हैं, जैसे कभी कोई हमारे दोस्त हैं, जो हम कभी मूर्थल में जाते हैं तो क्या करते हैं, पराठा लेते हैं, पराठे के साथ चिल्ड दही आती है। पराठा होता है गरम, बिल्कुल गर्म उतरते ही तंदूर से निकला हुआ, और दही आती है चिल्ड। तो गरम और सर्द का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा विरुद्ध आहार है। तो वो लेने से आपकी जो है गम्स में प्रॉब्लम आएगा, आपकी अग्नि वीक हो जाएगी। अग्नि वीक होगी तो हमारे जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सारी प्रॉब्लम का ओरिजिनेशन होता है। अगर ये हो गया तो किडनी में प्रॉब्लम कई सारी आती है।
इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना चाहिए कि कब खाएं कब ना खाएं। और खाने में एक तो हमारे मंत्र हैं, मंत्र मतलब एक रूल्स हैं। जब आप खाना खाने से पहले हाथ पैर धो लेने चाहिए। और खाने से पहले अगर आप अदरक का छोटा सा पीस साफ करके, थोड़ा सा उसके छोटे छोटे पीस करके उसमें सेंधा नमक लगा के खाएंगे तो आपको भूख अच्छी लगेगी और इनडाइजेशन मैटर जो पिछला पड़ा हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो खाने से पहले हल्की भूख कम है तो अदरक और नमक, सेंधा नमक, आयोडाइज नहीं, सेंधा नमक में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, आंखों के लिए अच्छा होता है, ठंडा होता है। तो ये आप लेंगे तो आपकी भूख अच्छी पड़ेगी। और खाना खाने के एकदम बाद, पहले जैसे मैंने बताया खाने से पहले आपको हाथ पैर धोने हैं, खाने के एकदम बाद आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन मतलब जैसे लोग नमाज पढ़ते हैं 10 मिनट तक वज्रासन में बैठना है और उस वक्त अपने हाथ पैर नहीं धोने। खाने के बाद अगर आप हाथ पैर धोएंगे तो आपकी डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाएगी, इसलिए आपको हाथ पैर नहीं धोने, वज्रासन में 10 मिनट बैठना है और सौंफ और मिश्री ये खा लेना है जिससे आपका डाइजेशन और इम्प्रूव हो, जो खाया है उसका पाचन हो जाए। और ट्राई टू हैव सम 100 स्टेप्स ऑल्सो, मतलब थोड़ा सैर भी करनी है। खाने के 10 मिनट आपने वज्रासन में बैठे, थोड़ा सा सैर किया। ये हमारे हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए आहार के रूप में जो हमारे रूल्स फॉलो करने हैं उसके बारे में बताया गया। हमारे 3 पिलर, प्लीज कंप्लीट। शॉर्ट में बोलूंगा, 3 पिलर हैं हमारे हेल्दी लाइफ के, आहार, निद्रा और एक्सरसाइज। आहार मैंने आपको बताया, आहार फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारी निद्रा, नींद हमारी कहा जाता है अर्धरोगारी निद्रा। दैट मीन जितने भी हमारे रोग हैं, हमारे जितने बॉडी में रोग होते हैं, उसका अगर कारण है, उसका आधे रोगों का कारण नींद का पूरा ना होना। दैट इज वेरी एसेंशियल पिलर। नींद हमारी 6 to 8 आवर होनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए दोपहर को ना सोएं। अगर आपके 6 to 8 आवर रात की नींद नहीं होती पूरी, आप किसी काम से व्यस्त हैं, काम नहीं कर पाते, समझ लो आप 4 घंटे सोते हैं, 2 घंटे का डेफिसिट है, तो आप दिन में सो सकते हैं 1 घंटा। जितने घंटे का डेफिसिट है उसका आधा आप दोपहर को सो सकते हैं। अदरवाइज दोपहर को सोने से आपकी जो है डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाएगी, वीक होगी तो जॉइंट प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। ये सेकेंड हमारा पिलर है। थर्ड है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारा एक्टिविटी तभी होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट है 40 के बाद हमारी बॉडी में जो एक प्रोस्टेट बढ़ जाता है। प्रोस्टेट कहाँ बढ़े, इसके लिए मूल बंद एक हमारा एक टेक्निक है जिससे मल द्वार को ऊपर की तरफ खींचा जाता है। सांस अंदर लेंगे छोड़ेंगे, सांस लेंगे छोड़ेंगे। अगर जो व्यक्ति इसको करता रहेगा तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम उसको जनरली 50 के आसपास, 50 और 60 के बीच में प्रॉब्लम आती है। अगर ये शुरू से करता रहेगा तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, बहुत डिले हो जाएगी। और सर्वांग आसन करना चाहिए ताकि एजिंग, जो हमारी एज, सभी एज के साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम आती हैं, वो हमारी एज में ना आए, हमारी उस एजिंग प्रोसेस में ना आए, ताकि हमारी ये डीजनरेशन डिले हो जाए। So these are the 3 parameters by which we can have a healthy life by following do's and don'ts regarding this ahar, nidra and exercise. Thank you. Now, Dr. Bhutia, you talked many things with respect to food habits, with respect to how to live a healthy life, and all those things. Well, that is fine. But then the main challenge is that when we talk about how the healthy lifestyle can delay the aging, we also need to understand that at the age of 40, all the professionals, wherever they are working, maybe they are in their business or maybe they are in job, they are spending 8 to 12 hours in their job or wherever they are working, and then 1 to 2 hours of travel time. So in a way 12 to 14 hours actually they are out of work. So what they should do practically so that they can actually implement, I think everyone knows about all those things, but then how to inculcate in their life, like you said that sit in the vajrasana. Maybe in the night it is possible to sit in the vajrasana, but what about daytime? Okay, देखो जितना आप फिजिबल हो सकता है, अगर आप डे में नहीं बैठ सकते सबके सामने तो नो नीड टू वरी, आप रात को बैठ जाइए। क्योंकि क्या होता है, दिन में हमारा जो डाइजेस्टिव फायर बड़ा स्ट्रांग होता है, दिन में आप नहीं बैठेंगे चल जाएगा, रात को डाइजेस्टिव फायर वीक होता है। जैसे जैसे शाम के बाद रात होनी शुरू होती है, डाइजेस्टिव फायर नॉर्मल कंडीशन में कम होता जाता है। अगर रात को तो आप घर में होते ही हैं, इजीली आप घर में रिलैक्सिंग मोड में होते हैं, खाना खा के बैठे हैं तो आप 10 मिनट के लिए आप बैठ सकते हैं, क्योंकि रात को खाना जो खाते हैं उसका डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए वज्रासन भी दैट इज ऑल्सो गुड, 10 मिनट्स बैठने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये
हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है खाना आपका पाचन हो। पाचन के लिए वज्रासन इज द बेस्ट। थोड़ा सा 100 स्टेप्स ले लें, थोड़ा सा चल फिर लें, उससे काम चल जाएगा। हमें हेल्दी रहने के लिए सभी व्यक्तियों को सभी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या को फॉलो करना चाहिए। दिनचर्या मतलब दिन में क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे आप हेल्दी रहें। आप सबसे पहले देखिए 40 और 50 के बीच में जनरली आंखें वीक होनी शुरू होती हैं, तो सबसे पहले आंखों को ध्यान रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे Yeah. हम बोलते हैं कि भैया आपका चश्मा लग गया, अब चश्मे का ये जो आप आंखों में चश्मा लगा रहे हैं ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमें ट्रीटमेंट देना है कि आंखों की जो पावर लूज हो रही है उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे क्योर किया जाए। हम चश्मा लगा लेते हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं है। ये तो जैसे आपने पावर अपने आंखों के आगे लगा दी, 6 महीने बाद, साल बाद इसका नंबर बढ़ जाएगा, फिर मोटा पावर का चश्मा लगाएंगे, फिर और चश्मा बढ़ जाएगा। हमारा मोटिव है इसको क्योर करना। कैसे करना? चश्मे का नंबर धीरे धीरे कम करना। वी हैव टू रिग्रेस इट, वी हैव टू जस्ट डीजनरेशन जो हो रहा है लोगों के एज में जनरली नंबर बढ़ेगा। आप अगर कुछ फॉलो करेंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो नंबर आपका कम होगा। उसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे Yeah. आंखों की ज्योति को बढ़ाना है, सुबह सुबह उठते ही आप आंखों की जो आपकी सलाइवा है, लार है, ये एंटीवायरल का काम करती है। और आंख को ये लगाओ मुंह से अपने फिंगर में, इंडेक्स फिंगर से अपनी आंखों में लगाओ। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये लगाया और लगा के आंखों में लगाया तो क्या होता है, हमारी जो आंखें हैं वो ये ब्लॉटिंग पेपर की तरह काम करती हैं। इसमें म्यूकोजा जो है हमारे सलाइवा को एक्सेप्ट करता है, अब्जॉर्ब करता है। ये सलाइवा हमारी आंखों में जाएगा तो ये आंखों की ज्योति को बढ़ाता है। इसके बाद Mhm. जब सबसे पहले उठे, आपने आंखों में लार को लगाया, सलाइवा को लगाया, फिर आप अपना किचन में जाओ और बैठ के हल्का सा ल्यूक वार्म पानी आपने पीना है, जितनी Mhm. प्यास हो। ऐसे कहा जाता है कि सुबह सुबह उठ के 2 लीटर, कोई कहता है मैं 2 लीटर पीता हूँ, 1 लीटर पीता हूँ, वो रॉन्ग है। आपको पीना चाहिए बैठ के। पानी को खाना है, पानी को पीना नहीं है। पानी जैसे हम खाना खाते हैं ना, एक गिराई खाते हैं, ऐसे ही पानी को खाना है। एक एक करके Mhm. सिप सिप करके लेंगे। अगर आप सिप सिप करें लेंगे तो दैट मीन्स आपकी प्योर जितनी थर्स्ट है उतनी बुझ जाएगी आप। अगर आप गल्प करेंगे लगातार, 1 गिलास पी गए, 2 गिलास पी गए, दैट मीन यू आर इन्वाइटिंग इंडाइजेशन ऑल्सो, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पियेंगे वो आपकी डाइजेशन को वीक करेगा, डाइजेस्टिव फायर को वीक करेगा। तो हमारा मोटिव है जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो सिप सिप करके लेंगे तो क्या होगा, उतना ही हमारी बॉडी में जाएगा। सिप सिप करके Mhm. आपने लिया, फिर आप वॉशरूम गए, वॉशरूम जाने के बाद बाथरूम गए, फिर उसके बाद आप वॉश बेसिन में खड़े हो जाओ, मिरर के सामने, मुंह में पानी भरो, ओरल कैविटी में पानी भरा और आंखों को धोना है। आंखें आपकी खुली हुई हैं और जो स्प्रिंकलिंग वाटर है, जो वॉश बेसिन से पानी आ रहा है, मुंह में अपने पानी भरा हुआ है नॉर्मल पानी, और स्प्रिंकल करना है। स्प्रिंकलिंग वाटर से आंखों को धोना है, वॉश करना है। इससे भी आंखें आपकी जो विजुअल प्रॉब्लम है सॉल्व होती है। पहला है सलाइवा लगाना, दूसरा मुंह में पानी भर के आंखों को धोना है। इसके बाद Mhm. जब आप बाहर आएंगे, ये आंखों के साथ साथ हमारे को ये रूटीन का है, ये बताया। उसके बाद हमने दांतों को फिट करना है, क्योंकि 50 के आसपास लोगों के दांत वीक हो जाते हैं। ओके, वहाँ Mhm. की जो आपकी जो गम्स हैं वो वीक होने से दांत की जो है स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ओके, तो Yeah. दांत वीक होंगे तो आपकी जो है दांतों का मेस्टिकेशन, जो दांत हम चबाते हैं खाना खाने के लिए, मेस्टिकेशन का पॉइंट हमारे ब्रेन के एमनेसिया से, मतलब जो मेमोरी पॉइंट होता है उससे कनेक्टिविटी होती है उसकी। अगर आप मेस्टिकेशन अच्छा कर रहे हैं, चबा रहे हैं, तो दैट मीन्स आप भूलेंगे नहीं। आपके मेस्टिकेशन से मेमोरी पॉइंट आपका इंटेक्ट रहेगा तो क्या होगा, आप भूलेंगे नहीं। जैसे कहा जाता है ना, लोगों के दांत निकल जाते हैं, डेंचर तो Yeah. लगा लेते हैं, डेंचर लगाने से वो मेस्टिकेशन प्रॉपर नहीं कर पाते, जो अपने नेचुरल दांतों से करते हैं वो नेचुरल नहीं कर पाते, तो मेमोरी इनकी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए आपको दांत फिट करने हैं, अपने फिट रखने हैं, तो गम्स को अच्छा रखना होगा। गम्स के लिए मुंह में आपने कोई भी तेल, वैसे तो एक बेस्ट तेल होता है इरिमेदादी तेलम, जो मुंह में रख के, यहाँ से गंडूस थेरेपी बोलते हैं, वो आप, Mhm. अगर आपके पास वो नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि वही हो। आप कोई भी तेल, जैसे तिल का तेल आपके घर में इजीली मिल जाएगा, तिल का तेल, ठीक है। तिल के तेल को हल्का सा ल्यूक वार्म करके मुंह में आपने रखना है। ओरल कैविटी में इतना रखना है कि इसको हम घुमा ना सके, पूरा मुंह भर जाए। ओके, इसको जितनी देर रखेंगे तो हमारे गम्स टोनिफाई हो जाएंगे, गम्स की रूट को स्ट्रेंथन होगा। वो गम्स अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तुम्हारे टूथ हमारे हेल्दी रहेंगे। टूथ अच्छे हैं तो हमारी ब्रेन एक्टिव रहेगा। ये हमारा सेकंड Mhm. स्टेप है। ओके, ये हमारे दांतों के लिए। पहले मैंने आंखों को बताया, ये दिनचर्या का फॉलो चल रहा है, सुबह सुबह आंखों के लिए, फिर दांतों के लिए।
ये जो आपने दांतों के लिए करना है, इसे गंडूस थेरेपी बोलते हैं। इसको पहले ब्रश करके टंग क्लीन करने के बाद मुंह में रखना है तेल। ओके, अगर आप टंग क्लीन नहीं करेंगे और ब्रश करने से पहले पहले कर लेंगे तो क्या हो सकता है कि उससे वॉमिट हो सकता है। ये ऑयल ओके। जितनी देर आप ओरल कैविटी में रखेंगे उतना आपको रिटेंशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपके गम्स अच्छे न्यूट्रिशन मिलेगा, ऑयलिएशन मिलेगा, ऑयल अंदर जाएगा। इसलिए रिटेंशन इसका ज़्यादा होना चाहिए। शुरू में 10 मिनट तक रख पाते हैं, उसके बाद उसको फेंकना पड़ता है। आप जितना, मैं 15 मिनट 20 मिनट जितनी आपके जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, इसको लगातार करते रहेंगे डेली, तो रिटेंशन पावर बढ़ेगा। तो इससे ओके। आपकी गम्स हेल्दी रहेंगे तो आपके दांत फिट रहेंगे। इसके बाद आप जब आएंगे, बाहर आएंगे, नाक में हमने नस्से डालना है। नस्से मतलब इंस्टॉलेशन ऑफ मेडिकेटेड ऑयल। आप कोई अणु तेल जनरली डालते हैं, आजकल बड़ा फेमस हो गया है। अणु तेल अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, सरसों का तेल ड्रॉपर से दो बूंदे नाक में डालनी। थोड़ा पीछे टिल्ट करो नाक को, गर्दन को पीछे टिल्ट करो और 2 ड्रॉप ड्रॉपर से डालो, 1 2, और उसको खींचो ऊपर की तरफ। दोनों नाक में ऐसी कंडीशन से आपने डालना है। इसका क्या फायदा होगा, इस नस्से कर्म इसे बोलते हैं। इसके डालने से धी, धृति, स्मृति। धी मतलब इंटेलेक्ट, धृति मतलब कंसंट्रेशन, स्मृति मतलब मेमोरी। ये ब्रेन के 3 कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं। अगर हम नस्से कर्म डेली करते हैं तो हमारी मेमोरी शार्प रहेगी, इंटेलेक्ट, हम सभी लोगों से अलग नजर आएंगे, हमारी इंटेलेक्चुअल पावर स्ट्रांग रहेगी, हमारी कंसंट्रेशन हमारी पर स्ट्रांग रहेगी। तो सिर्फ 2 बूंदे डालनी है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, जब हल्का सा धूप आ रही हो तब डालना है। ये आपने डालना है नाक, जो आपकी फिजिकली, तो आपने रोगों से लड़ने के लिए जो आपने आहार को अच्छा किया, मेंटली स्ट्रांग रखना है, तो कॉग्निटिव फंक्शन आपके स्ट्रांग होने चाहिए, इंटैक्ट होने चाहिए। ये क्योंकि हमारा नाक ब्रेन का द्वार है। जैसे ब्रेन को एक्टिव करना है, कोई भी चीज़ नाक के थ्रू डालेंगे वो ब्रेन को इम्पैक्ट डालेगी। इसलिए नाक के थ्रू हम जो ऑयल डालेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, जो नशे के 2 ड्रॉप लेंगे तो हमारा ब्रेन एक्टिव रहेगा। तो ये आपने सबसे पहले काम किया। फिर आप अपने नहाने धोने के बाद 2 मंत्र याद कीजिए। जब भूख लगे तभी खाना खाएं, प्यास लगे तब पानी पिए। पानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि कम से कम 6 लीटर पीना चाहिए, 5 लीटर पीना चाहिए। ये कंसेप्ट 20 साल पहले था। आजकल के मॉडर्न जमाने के जो डॉक्टर्स हैं एलोपैथिक, वो भी कहते हैं यू शुड ड्रिंक वाटर एज पर योर थर्स्ट लेवल। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, एसी चल रहा है, मेरे को पसीना नहीं आया। एक व्यक्ति बाहर पसीने में काम कर रहा है, मतलब पसीना आ रहा है, बहुत काम कर रहा है, धूप में काम कर रहा है, तो उसका पसीना ज़्यादा निकल रहा है। दोनों का जो क्वांटिटी ऑफ जो आपका वाटर है इक्वल नहीं हो सकता। सभी के लिए नहीं कह सकते 3 लीटर पीना है, 4 पीना है। इसलिए जितना आपके बॉडी डिमांड करेगी, जितना पसीना निकलेगा आपकी डिमांड होगी प्यास लग रही है। जितना बोलेंगे तो आपकी बॉडी से इस पर आपका जो स्वेटिंग होगी तो आपकी डिमांड करेगी। जैसे हम खाना खाते हैं, आटा में हम पानी मिलाते हैं तो वो भी पानी चला गया, हमारी बॉडी में गया, रोटी बन के गया। हम सैलेड खाते हैं, जैसे खीरा है, टमाटर है, उसमें भी पानी होता है। केला है, केला में मैक्सिमम पानी होता है, पोटेशियम होता है, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो कई चीज़ें हम अपने आप बॉडी में, हमारे फूड हैबिट्स में पानी मिल के हमारी बॉडी में जाता है। जितना हमारे को चाहिए होता है उतना मिल जाता है। जब बॉडी से स्वेटिंग होगा, बॉडी डिमांड करेगा, उस वक्त आपको बैठ के सिप करके पानी पीना है। चाहे वो 5 लीटर की प्यास हो, चाहे वो 1 लीटर की प्यास हो, जितनी डिमांड हो उतना पियेंगे। अगर ज़्यादा पियेंगे, दैट में अगर ज़्यादा पीते हैं तो डाइजेस्टिव फायर वीक होगी, कम पियेंगे तो पथरी होने के चांसेस हैं। तो एज पर योर स्वेटिंग लेवल, स्वेट कितना निकल रहा है, आपकी लाइफस्टाइल क्या चल रहा है, कितनी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है पीने के ऊपर, कितना पानी पीना चाहिए। तो ये खाना पीना ये इंपॉर्टेंट, पूरे दिन में आपने ये करना है, खाना पीना और काम करना है। फिर रात्रिचर्या आती है। रात्रिचर्या मतलब रात को क्या करना चाहिए। आपने आके खाना वाना खा लिया, रेस्ट कर लिया, वज्रासन कर लिया, थोड़े स्टेप कर लिया। सोने से पहले पाद अभ्यंग करना है। मतलब आपको को आपके जो सोल हैं, पैर के जो सोल हैं, तलवे हैं, उस पर मसाज करनी है देसी घी से, या कोई भी तेल घर में पड़ा हो उससे मसाज करनी है। इसके क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आपको नींद अच्छी आएगी। दूसरा फायदा ये है कि आपको थकान, पूरे दिन की थकान एकदम खत्म हो जाएगी। तीसरा फायदा ये है कि आपको जो आपकी विजुअल पावर है, आंखों की ज्योति है, वो बढ़ जाएगी। ये 3 चीजें आप करेंगे, रात्रिचर्या, दिनचर्या, ये तीनों को फॉलो करेंगे तो आपका रीजनरेशन प्रोसेस डिले होगा, मतलब स्टॉप नहीं होगा, डिले होगा। जो चीजें 50 से 60 में लोगों की आंखें वीक होती हैं, दांत वीक होते हैं, ये आप फॉलो करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम है नहीं आएगी। आप
अब मैंने बताया कि आसन में अगर मूल बंद लगा के आप मूल बंद लगाएंगे और सर्वांग आसन करेंगे तो आपकी जो जो हमारी प्राण वायु है ऊपर से नीचे जाती है। अगर आप सर्वांग आसन करेंगे तो वो नीचे से ऊपर जाएगी, तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, प्राण वायु अच्छी रहेगी। तो चीज़ों को फॉलो करने से वी कैन डिले दीज ऑल टाइप्स ऑफ डीजनरेशन। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे तो यू कैन हैव ए हेल्थी लाइफस्टाइल। So, Dr. Gogya, you said so many things, so many suggestions. But Okay. I think when we are doing this, it is also important to understand that what are the do's and don'ts while doing that. It should not happen that we overdo that, or maybe it can give some side effect or something like that. So whatever you have said, if there are certain things that need to be taken care, just like you said about water, that we don't need to drink 3 liters, 4 liters, or 5 liters, but whatever the body is demanding. So it means whatever is our internal requirement, only that much we should take. Or something similar is with other things, that any specific do's and don'ts that we need to take care while implementing that. Yeah, especially in case of nasse that will we are instilling medicated oil or any other oil, we are instilling these oil at our nostril। हम नाक में हम ये ऑयल डाल रहे हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मॉर्निंग टाइम में डालना है। ओके, सिर्फ मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि हमारे बॉडी के चैनल्स खुले होते हैं और जब बाहर धूप आ रही हो तभी डालना है। ओके, अगर जैसे आपको ऑफिस निकलना है 6:30 निकलना है, उस वक्त धूप नहीं आई हुई है, आपको डॉन मतलब उजाले उजाले में चले जाना है, तो एक काम कर सकते हैं, छोटी सी बॉटल को अपने बैग में कैरी करो और ऑफिस में 9-10 बजे के आसपास धूप आ रही है तो आपने 2 ड्रॉप डालो और आपने चला, अब काम कर लिया। तो दैट मीन्स जब सनलाइट आई हो तब करना है। अदरवाइज आप अगर बारिश हो रही है बाहर, तो बारिश वाले मौसम में सन नहीं होता, उस कंडीशन में हमें ये नशे कर्म नहीं करना। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, रात्रि में, रात को ये नशे कर्म नहीं करना, सिर्फ एक ही बार करना है, डे टाइम, जब सनलाइट जब तक आ रही है। 12 बजे से पहले कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, कभी भी कर सकते हैं। रात्रि में, रात को हमारे बॉडी के चैनल सारे ब्लॉक्ड होते हैं, रुके मतलब अभी बंद होते हैं, तो उसमें कोई भी चीज़ हम डालेंगे, अग्नि हमारी वीक होती है, तो वो डालने से इसको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इसलिए रात को नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट बात। और जितने भी मैंने दिनचर्या के बताए वो डेली मॉर्निंग में ही करना अच्छा रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे नशे कर्म करना है और आपको आंखों में लार लगानी है और गंडूश थेरेपी बताई, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी टाइम की डेफिसिट होने से वो नहीं कर सकते, बट पता होना चाहिए जब भी आप फ्री हो यू कैन डू इट। अभ्यंगम करना चाहिए, अभ्यंगम मतलब मालिश करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया अभ्यंग आचरित नित्यम स, जो लोग डेली मसाज करते हैं, जरा श्रम वातः, जरा मतलब बुढ़ापा, जो लोग मसाज करेंगे उनको बुढ़ापा नहीं आएगा, आएगा तो वो डिले हो जाएगा, डीजनरेशन डिले हो जाएगा। जरा श्रम वातः, श्रम मतलब थकान नहीं होगी, वातः मतलब वातिक डिसऑर्डर, पेनफुल डिसऑर्डर नहीं होंगे। सूत्वक सुनिद्रा दाड़िम कृता, स्किन उनकी बच्चों जैसी हो जाएगी, सॉफ्ट स्किन, बड़ी ग्लोइंग स्किन होगी। सुनिद्रा, नींद अच्छी आएगी और हमारी मसल टोनिफाई हो जाएंगे। ये जैसे आप लोग जितने भी एमएलसी में लोग काम करते हैं 5 डेज ए वीक होता है, सैटरडे संडे अगर अभ्यंग कर लें, फुल बॉडी मसाज, किसी जरूरी नहीं है कि बंदा आए आपके करने के लिए, आप खुद भी मसाज कर सकते हैं। आधे पौने घंटे बाद आप उसको तो अपना छोटे मोटे और काम कर लिए, मसाज करने के बाद आप फिर उसको नहा सकते हैं, क्योंकि आधे घंटे बाद बॉडी में वो जो तेल लगाया हमने वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या आता है कि हम मालिश कर लेते हैं, आधे पौने घंटे में जब नहाना होता है साबुन लगा के नहाते हैं। कोशिश कीजिए साबुन को फेस पे कभी मत लगाओ, वहाँ लगाना है जो हमारा बॉडी एक्सपोज होता है, जहाँ पर मिट्टी लगने के चांस, डर्ट लगा हुआ है, मिट्टी है, तो उसको हमने साबुन से वॉश कर लिया। जब हमने अभ्यंग किया हुआ है, अगर आप साबुन से उस एरिया में जहाँ जहाँ तेल लगाया है, अगर आप उसको मालिश करके अगर साबुन लगा देंगे तो जो बॉडी में अब्जॉर्ब हुआ है ऑयल वो भी स्पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना है, मोटा बेसन लेना है, मोटा बेसन जनरली राजधानी का या किसी का भी ले लो, थोड़ा सा पानी मिला के पेस्ट बन जाएगा, जहाँ जहाँ आपने ऑयल लगाया वहाँ लगाओ, थोड़ा रब करो और उससे वॉश कर लिया। उससे क्या होगा, जो बॉडी में अब्जॉर्ब हुआ वाला हमारा जो ऑयल है वो बॉडी में रहेगा, एक्सेसिव जो बाहर जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा। तो बॉडी में ऑयल लगाने का फायदा होगा अगर हम बेसन के पानी से, बेसन वाले से जो पेस्ट से अगर धोएंगे तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभ्यंग करते हैं एक्टिव, स्मार्ट, फिजिकली मेंटली एक्टिव रहते हैं, नशे करने से भी एक्टिव रहते हैं, तो ये फॉलो करना है। अगर आप 1-2 इन ए वीक करें दैट इज मोर, वो भी अच्छा है। डेली करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो हफ्ते में एक बार करें
करेंगे तो फिट रहेंगे, अलग नजर आएंगे. You will have a unique quality, unique personality. Mm-hmm. Wonderful. I think, Dr. Gugia, in this 30 minutes, we talked a lot, and you shared everything to be done from morning till the night. And I'm very sure that even if we can implement 20% of what all you have just shared, I'm sure that it is not only going to help us to remain healthy, but it also reduce, or you can say that stop our degeneration to a large extent. And then, yes, we can say that we are going to age, but then we will age gracefully. Yeah. Thank you very much for the excellent communication about so many things. I'm very sure that once we are going to learn and implement, it may take some time. I don't think it is practically possible to implement everything at one go. But even if we start with one thing, like you talk about the anu tail, or maybe you talked about putting up something that thuk, on our eyes, and all those things, Right. some small, and we can make it a part of our habit, then sooner or later, all those things are going to benefit us a lot. Thank you very much. Thanks a lot for Okay. the wonderful communication. And thank you. Thanks Thank for you. your inviting me as a speaker. So I am really very happy that each and every person should have a healthy lifestyle in order to this regress this degeneration. So स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छी लाइफ जिए. Thank you. Wonderful. Thank you.